Good afternoon, everybody. This is the BN Rubin from Ambedkar University. I teach sociology. So I'm thankful to organizers Dr. Manorma Singh, Dr. Praveen as organizing secretary, Dr. Reena, convener of this webinar. I'm thankful to you all. I'm also thankful to guest of honor, Professor S.D. Sharma and Mr. S.K. Singh, IPS. And I'm thankful to my co-panelists and those who are participating in this webinar. Friends, we have listened carefully from the medical perspective. We have listened carefully from the perspective of police department, as well as from perspective of a principal, how they have visualized COVID-19. Now it's high time we should look to analyze the things in a different perspective. Since I come from the sociology field, so obviously mine would be a socio-economic perspective to analyze existing this COVID-19 impact, in the sense that what are the issues, what are the challenges, and at the same time what are the opportunities. See, straight away coming back to the kind of data we are receiving from the media in day-to-day life, till now, the total number of human beings affected by COVID-19, the number is 46 lakhs. At the same time, death toll is also very high. And all over the world, we have 3.1 lakhs death toll. And that is the highest in New York from America. So US is the leading, and US is heading in the sense that the death toll is almost more than 89,000 plus. And a city like New York, it has been hub for this COVID-19 as well as hub for the death also. Another factor I would like to highlight that in a country like India, essentially we are a poor country. We are a country having 130 crores population, and out of 130 crores, as per the data received from the previous planning commission, more than 22.5 crores people they are living below poverty line. So we are a highly hierarchical, segmented, and caste-ridden society. Second point I would like to highlight that in a country like India, excuse me, Dubey sir, can you be bilingual? I think it will be easy for the audience to follow you then. जी मैं जा रहा हूँ। आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो आर्थिक तथ्य हैं, बहुत हद तक आप लोग जानते भी हैं, और दूसरा सामाजिक पहलू है कोविड-19 का। हमारे पास जो मुद्दे हैं कोविड-19 से आर्थिक मुद्दे, उनका संबंध सीधा फिक्की की अभी एक स्टडी आई थी और उसको शेयर भी फिक्की ने किया था। तो फिक्की के अनुसार कुछ ऐसे सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उनको हम हाईलाइट करेंगे। For example, demand and supply. All over the world, including India, demand and supply has gone down, and that has adversely affected tourism, hospitality, aviation, automobile, pharmaceutical, electronics and chemicals. दूसरी बात जो फिक्की ने बताया है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो कैपिटल जनरेशन है, जो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक बैकबोन है किसी भी कंट्री की। हमारे देश की भी इकोनॉमिक बैकबोन है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है जितने कि अमेरिका में है, इटली में है, फ्रांस में है और जापान में है और जितने रूस में है। तो ये हमको कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है, तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, खासतौर से आर्थिक रिसोर्सेज। आप सारे लोगों को पता होगा कि इस जितने भी लोग एम्प्लॉयमेंट में, सारे लोग प्राइम मिनिस्टर फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे कैपिटल इंस्टीट्यूशन, हमारा शेयर मार्केट, उसकी हालात आप देख रहे हैं। पूरे विश्व में रिसेशन है, भारतवर्ष में भी इकोनॉमिक रिसेशन है, और इस रिसेशन का सीधा प्रभाव इंटरनेशनल ट्रेड पे पड़ रहा है। इन्हीं दिनों लॉकडाउन का जो पीरियड है, इन्हीं दिनों हमने लगभग 400 to be very precise 387 मिलियन $US लूज किया है। भारत जैसे देश ने इतना $मिलियन लूज किया है। और एक बार और बता दें कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी हुई है बहुत हद तक, और इस बात से हम सहमत हैं क्योंकि मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में शहरों को छोड़ के गांव की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसका विश्वास है कि कृषि उसको बचा लेगी।
कृषि की वजह से वो बचा रहेगा, कम से कम भूखे नहीं मरेगा, और इसलिए पलायन है, पलायन के और भी कारण है। तो आपको बता दें, प्रतिदिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फूड का प्रोडक्शन और जो फूड की प्रोसेसिंग का लॉस है भारतवर्ष में 300 करोड़ प्रतिदिन का है। एक और आपको बता दें कि चूंकि कोविड-19 ने बहुत बुरी तरह से इकोनॉमी को प्रभावित किया है, इसलिए ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें प्रभावित हुई है। अब हमारे पास ऑप्शंस, इकोनॉमिक ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं जो कोविड-19 के दौरान इसको शुरू किया जा सके। एक और इम्पोर्टेंट पहलू आपको शेयर करना चाहेंगे कि भारत का चाइना के साथ किस तरह का ट्रेड रिलेशनशिप है। आज भारत आत्मनिर्भर हो, ये बहुत अच्छी बात प्राइम मिनिस्टर ने बताई है और मोदी से हम लोग सहमत भी हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कम से कम भारत और चाइना के ट्रेड रिलेशन को देख लें। बहुत छोटा आंकड़ा आपसे शेयर करना चाहेंगे। चाइना पूरे विश्व के व्यापार का लगभग 13% वहां पे वो एक्सपोर्ट करता है वस्तुओं का, और 11% इंपोर्ट करता है। इसका मतलब कि विश्व परिदृश्य में चाइना का योगदान बहुत बड़ा है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी बात हमको ये भी समझनी चाहिए कि भारतवर्ष से चाइना के रिलेशनशिप कम से कम इकोनॉमी के मुख्य सेक्टर्स, उनका भी हम नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो डेटा अभी तक उपलब्ध है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमारी चाइना से हम कम से कम 45% चाइना से हम आयात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल संबंधित वस्तुओं का। इसके अलावा हमारे पास केमिकल्स 37%, इसके अलावा मोबाइल फोन 90%, पूरे भारत के मोबाइल फोन का टोटल 90% चाइना से आता है। इसके अतिरिक्त एक और आंकड़ा हम देते हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, और मेरे ख्याल से डॉक्टर त्रिपाठी से सहमत होंगे। हमारे पास मेजर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं वो चाइना से मंगाई जाती है। लगभग 58 मॉलिक्यूल्स हम आजकल चाइना से मंगा रहे हैं, और वो कुल आयात का फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में 70%, जो कि बहुत बड़ा है। 70% चाइना से हम आयात कर रहे हैं मॉलिक्यूल, वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा हमारे पास फार्मा के अलावा ऑटोमोबाइल, हमारे पास मशीन, हमारे पास और सारी चीजें। एक बात और हम बताते हैं कि भारतवर्ष चाइना को भी चीजें यहाँ से निर्यात करता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं चाइना एक बड़ी कंट्री है और चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ये तो बात सही है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि भारत जैसा देश चाइना को लगभग प्रति वर्ष कम से कम 30,000 करोड़ प्लस की वस्तु यहाँ से चाइना भेजी जाती है। लॉकडाउन के दौरान सी फूड, समुद्री जो फूड है, और पेट्रोकेमिकल्स, और इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसका भारत निर्यात चाइना को करता है, इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान लगभग 20,000 करोड़ का भारतवर्ष नुकसान हो चुका है। अकेले जयपुर जैसा शहर का नुकसान 8,000 करोड़ रुपए का है। ये आंकड़ा हम क्यों शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये वही आंकड़े हैं जिनके आधार पे हमारी इकोनॉमी चल रही है। एक और हम बात अंत में बताना चाहेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, कि अब हम देख रहे हैं कि शहरों से माइग्रेशन गांव के तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। भारतवर्ष में कुल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स लगभग 46 करोड़ का है। ये एनएसएस का लेटेस्ट डेटा है। 46 करोड़ वर्कफोर्स में लगभग 9 से 10 करोड़ शहरों में रह रहे हैं, जो कि अब पलायन कर रहे हैं। गांव की तरफ माइग्रेशन बढ़ रहा है, गांव की तरफ लोग आ रहे हैं, और आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, आए दिन पुलिस व्यवस्था, आए दिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सारा एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में उभर रहा है। टेलीविजन चैनल्स पर प्रतिदिन देखते हैं, मजदूरों के क्लिपिंग्स आते रहते हैं, उनकी सफरिंग्स, और कैसे गांव जा रहे हैं, कैसे वो सफर कर रहे हैं रेलवे ट्रैक्स पे पैदल, कभी पुलिस का रेस्ट्रिक्शंस, कभी एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्ट्रिक्शंस, तो सारा दंश वो झेल रहे हैं। इसके अलावा हम बता दें कि हमारे पास जो 46 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें 26 करोड़ लगभग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। समस्या इस बात की है कि 9-10 करोड़ शहरों से अगर गांव पहुंच जाएंगे तो कृषि सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां लगातार उत्पादन नहीं होता रहता है। कृषि कुछ समय के लिए रुकती है, फिर बुआई होती है, फिर कटाई होगी, फिर नई फसल, इसमें समय लगता है। तो लगातार प्रोडक्शन वाला ये सेक्टर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि खासतौर से जो लोग जा रहे हैं, 9 से 10 करोड़ लोग गांव में जा रहे हैं शहर छोड़ के, उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे, कैसे अकोमोडेट करेंगे हम लोग, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस बीच भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ का पैकेज
जो गांव में सूक्ष्म मझोले छोटे उद्योग हैं उनके लिए दिया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारा कुछ सब्सिडी के फॉर्म में है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जो डायरेक्ट ट्रांसफर है और जो सब्सिडी के रूप में है, और इसको ब्याज के सहित आपको वापस भी करना पड़ेगा। और कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी है कि जैसा कि डॉक्टर बता रहे थे और मिस्टर सिंह भी बता रहे थे, ये जल्दी से जाने वाला नहीं है, इसके साथ रहने की विधि हमको ढूंढनी पड़ेगी। इसके साथ हम कैसे रहेंगे, हेल्थ हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भारत आज के कोरोना के पहले 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश है और जहां पे लगभग फॉरेन इन्वेस्टमेंट 450 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे कंट्री में आने वाले सिचुएशन में हमारी आर्थिक दशा क्या होगी, मजदूरों की दशा क्या होगी, प्रोडक्शन का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, फार्मास्यूटिकल का क्या होगा, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। और इसी के अलावा इसमें अवसर भी निकल के आ रहे हैं हमारे पास। छोटी 2-3 बातें और हम बता दें, जो सोशल सेक्टर से हमारे पास है कि समाज, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां लगभग 130 करोड़ जनसंख्या, और इसमें हम पहले भी बता चुके हैं शुरुआत में कि लगभग 22.5-23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। इसके अलावा सोशल हायरार्की, इसके अलावा जो भारतवर्ष में कास्ट की हायरार्की अलग है, और इसके अलावा जो हमारा संघर्ष है दिन प्रतिदिन के जीवन, मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन पे किसका अधिकार है, जो प्रोडक्शन है उससे जो प्रॉफिट है उससे किसका अधिकार है, ये सब और बातें हैं जो किसी दूसरे फोरम पे इस पर डिबेट किया जा सकता है। सामाजिक तौर पे हम बताएं कि समाज परिवार से बनता है, परिवार मिल के समूह बनाते हैं और समूह मिलकर कम्युनिटीज बनाते हैं, कम्युनिटीज मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। तो अगर हम कोविड-19 को देखें तो इसका व्यापक प्रभाव समाज पे पड़ने वाला है, परिवार पे पड़ने वाला है, कल्चर पे पड़ने वाला है, स्कूल के सिस्टम पे पड़ने वाला है, सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सामाजिक ताना बाना है उस पे पड़ने वाला है। और किस प्रकार पड़ेगा या पड़ रहा है उसकी छोटी सी झलक आपको बता दें, इसके पहले कि हम अवसर पे अपना फाइनल डिस्कशन खत्म करें। कोविड-19 ने कम से कम हेल्थ और हाइजीन, सोशल डिस्टेंस, इसके मार्फत से सिखा दिया है कि हमें सामाजिक दूरी बनाना बहुत जरूरी है। एक जमाना था कि भारतवर्ष को या अभी भी सोशल अनटचबिलिटी के लिए इस समाज को सोशल अनटचबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम किया गया, सामाजिक दूरी पे, सोशल अनटचबिलिटी। अब इस बात की जरूरत है कि ये सोशल अनटचबिलिटी साइंटिफिक अनटचबिलिटी में कन्वर्ट हो, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये कन्वर्ट हो रही है। रीजन ये है कि एट द फैमिली लेवल, एट द कम्युनिटी लेवल, द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन दे आर गेटिंग चेंज। फॉर एग्जांपल, फैमिली का जो रोल सोशलाइजेशन में है धीरे धीरे अब कोविड की वजह से बदल रहा है। अब उसका स्थान डिजिटल मीडिया ले रहा है, डिजिटल वर्ल्ड ले रहा है। एक ऐसे वर्ल्ड में हम प्रवेश कर रहे हैं जहां वर्चुअल समूह वर्चुअल है और हमारा पीयर ग्रुप वर्चुअल है, हमारे रिश्ते वर्चुअल है, हमारी गैदरिंग वर्चुअल है। अब शादी विवाह के अवसर पे आने वाले समय में जब तक कोरोना रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा, सोशल गैदरिंग हम नहीं कर पाएंगे और वर्चुअल गैदरिंग हम कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग हम कर सकते हैं, वर्चुअल और डिजिटल वर्ल्ड के मार्फत हम एक दूसरे के गम और सुख में शरीक हो सकते हैं। मोबाइल पे चल रहा है हमारे, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, ऑफिस में इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गया मेरा। नहीं, हमारी आवाज आ रही है। हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर है सर, बिल्कुल। हम फैमिली की बात कर रहे थे और सोशलाइजेशन के एजेंट्स की बात कर रहे थे। एस.के. सिंह साहब ने इस बात को भी उन्होंने अपने उसमें कहा कि हमको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि धीरे धीरे हमको कोविड-19 के साथ कैसे जीना है, इसको सीखना पड़ेगा। और हमारे पास हमने बताया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल अनटचबिलिटी पहले थी, अब सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको हम साइंटिफिक डिस्टेंसिंग कह सकते हैं। और ये डिस्टेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में जो रिलेशनशिप है, मैन और मशीन का रिलेशनशिप बहुत तेजी से बदलने वाला है। वो मशीन आईटी का कोई कंपोनेंट हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो मोबाइल फोन हो सकता है, और सोशल इंस्टीट्यूशन जो सामाजिक संस्थाएं जिनको हम कहते हैं, जिसमें विवाह भी है और सामाजिक संस्था एक परिवार भी है, इसमें भी आने वाले दिनों में व्यापक परिवर्तन आने वाला है क्योंकि नॉर्म्स, वैल्यूज, एटिकेट, ये सारी चीजें बदलने वाली है समाज में। अब चूंकि हम वास्तव में जाके
मैरिज पार्टीज में किसी जन्म के समय, किसी मृत्यु के समय शरीक नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ई और डिजिटल के माध्यम से इसका शरीक होंगे। अभी एक रोहिणी दिल्ली से एक वीडियो आया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसमें फैमिली में डेथ हो गई है और उस डेथ में लोग शरीक कैसे हो रहे हैं, या तो डिजिटल के माध्यम से शरीक हो रहे हैं, या तो घर के बाहर से भी टाटा गुड बाय करके और वहां से प्लकार्ड दिए हुए दिखाते हुए लोग चले जा रहे हैं। तो इस तरह की भी संस्थाओं का जन्म होगा जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। और एक और बात ये बता दें कि आने वाले दिनों में ई कार्ड पे, ई गैदरिंग पे, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है उस पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और स्कूल की बात भी बताई हमारे जो वक्ताओं ने। स्कूल एक ऐसा माध्यम है जिसके तरीके से हम बच्चे में औपचारिक तरीके से नए गुणों का विकास करते हैं। कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों बिहेवियर बच्चे का स्कूल में स्ट्रेंथन होता है। कोविड-19 ने कम से कम, अब स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे, यूनिवर्सिटीज में बच्चे जा नहीं रहे हैं, टीचर्स भी नहीं आ रहे हैं, तो ई लर्निंग, नाउ द फोकस इज ऑन ई लर्निंग, नाउ द फोकस इज ऑन ऑनलाइन क्लासेस. It has been started from the university level and it is percolating down to the school level. Even small kids, they are learning through online, and interestingly, data is also being generated from the university level. We are regularly sending those data to MHRD, and MHRD is planning some educational policy in the near future related to e-learning, related to e-governance and e-governance of schools, universities and colleges. And even it is also going to the pattern of examination, evaluation, the pattern of even PhD Viva, MPhil Viva, the pattern of evaluation of pattern, that is likely to be changed very soon in a drastic way. So we have to prepare in the field of education. So far this COVID-19 is concerned. Another point, the last but not least, I want to make it related to religion. Though it is a very sensitive point, yet I want to make that point very clearly, because religion is related to gathering. As per the Durkheimian explanation of religion, it is related to gathering, it is related to rituals, it is related to sacred things in the world. आने वाले दिनों में रिलीजन पे धीरे धीरे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू इसलिए कर दिया है क्योंकि रिलीजन के जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर का मतलब गुरुद्वारे के रूप में, मंदिर के रूप में, मस्जिद के रूप में, चर्च के रूप में, ये सारे बंद हो रहे हैं क्योंकि कोविड ने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है कि अगर ये कहा जाए कि भगवान को बंद होना पड़ रहा है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और सिनेगॉग में और चर्च में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में रिलीजन, इसका प्रकार, मनुष्य का रिलीजन से किस तरह का संबंध है, ये भी बदलने वाला है और उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि रिलीजन में बहुत ज्यादा फेथ है लोगों का, लेकिन जब रिलीजियस संस्थाएं और रिलीजन के स्ट्रक्चर्स ने हेल्प करना बंद कर दिया है तो अब बस आस्था मात्र रह गई। इन दिनों काफी त्योहार बीते हैं, रमजान में भी चल रहा है, लेकिन मस्जिदें बंद है और मक्का मदीना तो काफी कई महीनों से बंद है। तो इन अब नए रूप में रिलीजन आएगा और इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है तो हम बिल्कुल सहमत हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये जो अवसर है, ये जो हमारे ये पैंडेमिक है, इसको अवसर में बदलने की जरूरत है और इसके लिए आने वाले समय में जो हमें अवसर दिख रहा है, इतना समय और मैं लूंगा, उस अवसर में हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में अब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में या ऑफिसेज में बिल्कुल फोरफ्रंट पे होगी और इसके द्वारा मैन मशीन रिलेशनशिप, मैं बार बार इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, मैन मशीन रिलेशनशिप, ये बहुत तेजी से चेंज होगा। मशीनों के अनुरूप अब हम लोगों को ढालना पड़ेगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब हमारे डिसीजन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे, कम से कम इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि वो आने वाले समय में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटाइजेशन, ई कॉमर्स और इस तरह की चीजें, फिनांस, वो फिनटेक जिसको कहा जाता है, वो इसका रोल बहुत बढ़ने वाला है। दूसरी बात है कि डिजिटल माध्यम से पूरा एंटरटेनमेंट का वर्ल्ड बदलने वाला है। कोविड-19 2-3 महीने के प्रभाव में हम लोग देख रहे हैं, 40-50 दिनों के लॉकडाउन के प्रभाव में, कि किस तरह से लोग डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट किए हैं। बच्चे, फैमिलीज,
परिवार का हर एक व्यक्ति एक औसतन परिवार में 3 से 4, 5 घंटे तक का समय डिजिटल वर्ल्ड पे बिता रहा है, उसमें नेटफ्लिक्स पे पिक्चर भी देख रहे हैं। तो मेरा मेरा मानना यह है कि आने वाले दिनों में मल्टीप्लेक्सेस में लोग जाना कम करेंगे या बंद करेंगे, अगर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, उसके नॉर्म्स फॉलो नहीं किया, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड का रोल बहुत बढ़ेगा और यही बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए भारत जैसे देश को तैयार रहना पड़ेगा। डिजिटल वर्ल्ड एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ पीपल विल बी एम्प्लॉयड, and the most important thing with the digital world is that is going to lead automation of the industry। और जब ऑटोमेशन होगा तो डेटा और आईटी ये तो ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत वैल्यूएबल होंगे आने वाले समय। और इसके अलावा एक बहुत ज्यादा होप हम लोग देखते हैं, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इन सारे देशों ने कह दिया है कि चाइना से अपनी इंडस्ट्रीज को हटा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत आत्मनिर्भर बन सकता है उसको अगर टैप हम कर लें तो, क्योंकि हमारे पास सस्ता मजदूर है, हमारे पास अनुकूल परिस्थितियां हैं, हमारे गवर्नमेंट फेवरेबल है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है। क्योंकि पॉलिटिकल इशू पे हम नहीं बोलना चाहते हैं, इतना हम जरूर कहें कि भारतवर्ष की अभी की गवर्नमेंट अपेक्षाकृत ज्यादा स्टेबल है, डिसीजन लेने में विश्वास करती है, लोगों में विश्वास करती है और लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट करती है। ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में जो चाइना से इंडस्ट्रीज आएंगी उसको अपने हम ला सकते हैं तो बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि यही समय है जो हमारे पास मजदूरों का पलायन है। 9 से 10 करोड़ लोग गांव जा रहे हैं, गांव में हम माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, मीडियम लेवल पे इंडस्ट्रीज को हम डेवलप करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास सेक्टर्स हैं, कोर सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का, फार्मास्यूटिकल का, जैसे कंस्ट्रक्शन में कितने 6-7 करोड़ लोग लगे हुए, उसको भी हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द चेंजिंग इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है भारत के सामने। और सोशल लेवल पे अपॉर्चुनिटी क्या होगी, बहुत छोटे में 1 मिनट का और हम समय लेंगे, हम लोग हमने काफी ज्यादा समय ले लिया है। सोशल वर्ल्ड में चूंकि अब नई सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज आई कैन कॉल इट अ न्यू सोसाइटी। न्यू सोसाइटी विल बी अगेन मोर डिजिटल, मोर टेक्नोलॉजिकल, एंड दैट वुड बी based on e-gathering, e-cards, e-marriage, even e-institutions, and traditional setup will be challenged or it would be vanished in the coming period of time. Similarly, again, the focus of the society, entire society and economy obviously would be on health. अभी हम देखें, सब कुछ छोड़ के हमें लग्जरी नहीं चाहिए, हमें गाड़ियां नहीं चाहिए। मारुति 2 महीने में एक भी गाड़ी नहीं बेच पाई है, मर्सिडीज बेंज एक भी गाड़ी नहीं बेच पाई है। हमको जो लिमोजीन है वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बेसिक चीजें। हमको भोजन चाहिए, हमको रहने की जगह चाहिए, हमको मेडिकल सुरक्षा चाहिए। क्योंकि कोविड का कोई उपाय नहीं है तो लोग काढ़ा पी रहे हैं, आयुर्वेद के पास जा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सारी चीजें कोविड के साथ ही रहेंगी और समाज भी इसी तरह का रहेगा जहां इनको हम फॉलो करेंगे। और जो न्यू सोसाइटी होगी वहां पे उस सोसाइटी में हेल्थ को प्रायोरिटी हम लोग देंगे। हेल्थ एक बहुत नेग्लेक्टेड सेक्टर रहा है इंडियन इकोनॉमी का। इस बात पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर हेल्थ है तो हेल्थ की वजह से आर्गुमेंट, तो हेल्थ एक नए रूप में आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में आने वाला है। परिवार में भी प्रति महीने, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष का हेल्थ पे खर्चा बढ़ रहा है और बढ़ेगा और ये वाजिब भी है। आजकल देख रहे हैं सैनिटाइजर, कोविड-19 ने और कुछ किया हो न किया हो, कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा उन्होंने मोबिलाइज किया है ऑल ओवर द इंडिया। आप गांव-गांव में चले जाएं, क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं जहां सुविधा नहीं है, लोगों ने अपने ढंग से बनाया हुआ है। रूरल इंडिया हो, ट्राइबल इंडिया हो, अर्बन इंडिया में कौन हो रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। इसकी बात एक और मेजर चैलेंज आने वाला है, वो चैलेंज नहीं अपॉर्चुनिटी आने वाली है। उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे टाइप करेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। बदलती हुई संस्थाएं, बदलते हुए वैल्यूज और बदलते हुए नॉर्म्स में व्यक्ति कैसे ढालेगा, समूह के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, डिजिटल कितना प्रभावी होगा, आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद, उन्होंने बहुत बहुत समय दिया और हम आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर्स, particularly Dr. Manorma Singh, Dr. Praveen Singh, Dr. Reena, Professor S.D. Sharma sir, and Sri S.K. Singh sir ji, and Dr. Tripathi ji. I'm so thankful to you. I'm so enlightened by the way this
you have organized this webinar. I'm thankful to participants also for their patient listening, because without that, it could have not been possible for me to speak at least 20 to 25 minutes. Thank you so much.